next video on linear programming. In this case, we will discuss the questions related to practical problems. Exercise 12.2. In our syllabus, we have manufacturing problems and transportations. Diet problems are all related to unbounded functions. So these are not in this syllabus. So we will not discuss the questions related to diet problems. First, I have written the theory related to the previous videos. Okay, what are the steps have to be taken care while writing this linear programming problem? The method of solving linear programming problem is referred as corner point method. The method what we are using is known as corner point methods. Although there are many methods, but in our syllabus it is only one method. Find the feasible reason of the linear programming problem, determine its corner points. Either by inspections, mean ग्राफ पेपर के ऊपर करेंगे तो इंस्पेक्शन से आ जाएगा, और by solving two equations of line intersecting at that point. जैसे दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था. Evaluate the objective function at each corner points. ये भी मैंने बता दिया आपको. Capital M and small m respectively denotes the largest and smallest value of these points. Third, first point, when the feasible region is bounded, capital N and small m are the maximum and minimum value of Z. In case the feasible region is unbounded, nowadays these are in deleted portions, then capital M is the maximum value of Z if the open half plane determined by this. ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ग्रेटर देन m. एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसका कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए विद फिजिबल रीजंस, तब कहेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, अदरवाइज z हैज नो मैक्सिमम वैल्यू. ये मैंने बताया था थ्योरम 2 में कि अनबाउंडेड फंक्शंस में आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. Similarly, the small m is the minimum value of z if the open half plane determined by less than m. ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, z है, z लेस देन m. एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नो पॉइंट कॉमन विद द फिजिबल रीजन से कोई पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए. आज हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स इस वीडियोस में डिस्कस नहीं करेंगे वेयर द क्वेश्चन इज अनबाउंडेड. वी विल टेक ऑल द क्वेश्चन दैट आर रिलेटेड टू योर बाउंडेड. और मैं इन सब क्वेश्चंस के ग्राफ ड्रॉ नहीं करूंगा, सिर्फ आई विल गिव यू द आइडिया ऑफ लीनियर कांस्टेंट्स. टेबल्स कैसे बनाते हैं उस टाइप्स के मैं आपको आइडियाज दूंगा. रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स एंड कैलकुलेशंस विल यू डू ऑफ योर ओन. I am taking 12.2 exercise question number 2. One is related to your diet problems and I am not taking because this is unbounded functions. One kind of cake requires 200 gram of flour and 25 gram fat. Another kind of cake requires 200 gram of flour and 50 gram fat. Maximum number of cakes which is to be made from 5 kg flour and 1 kg fat, assuming that there is no shortage of other ingredient used in making the cakes. Maximum number of cakes की बात हो रही है. लास्ट लाइन से आपको यह पता लगेगा कि आप करना क्या चाह रहे हैं. आप कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 आई एम टेकिंग लेट x be the number of cake of first kind and y be the number of cakes of second kind.
आप यहाँ पे एक ये टेबल्स बनाने की कोशिश करें। यहाँ पे हेडिंग लिखें नंबर ऑफ केक्स यहाँ पे काइंड लिख दें। ये फर्स्ट काइंड का है, ये सेकंड काइंड का। काइंड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नंबर ऑफ केक यहाँ पे मैंने एक्स लिया फर्स्ट काइंड के, दूसरे काइंड के वाई लिए। यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट लिख लेते हैं, फ्लोर रिक्वायर्ड इन ग्राम्स। इसको 200 ग्राम चाहिए और इसको 100 ग्राम चाहिए। तो मतलब नंबर ऑफ केक एक्स है तो 200 इंटू एक्स ग्राम हो जाएगा, ये 100 इंटू एक्स ग्राम हो जाएगा। टोटल आपके पास यहाँ पे एक्स प्लस वाई आ गए, यहाँ पे 200 एक्स प्लस 100 वाई आ गए। फैट रिक्वायर्ड, पहले वाले केक में 200 ग्राम में फैट 25 ग्राम से, इट मीन 25x। दूसरे वाले में 50y है। टोटल ऐड करेंगे 25x प्लस 50y। क्लियर? अब यहां से जो लीनियर कांस्टेंट्स बनेंगे ये मैंने आपकी स्टेटमेंट्स बना दिए। अब फ्लोर आपके पास टोटल कितना है? 5 kg मीन लेस देन इक्वल टू 5000 ग्राम, क्योंकि पूरा यूनिट आपको 5000 ग्राम में बनाना है। बिकॉज 5 kg इज इक्वल टू 5000 ग्राम। टोटल क्वांटिटी आपके पास 5 किलो है। फैट आपके पास कितना है? 1 kg है, मीन लेस देन इक्वल टू 1000। इसमें आपने ये सोचना है कि आप रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं यूज कर सकते, कम कर सकते हैं। x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जेड आपके पास क्या रहेगा? x प्लस वाई ऑब्जेक्टिव फंक्शंस टू बी मैक्सिमाइज्ड। ये आपकी रिक्वायरमेंट, यूनिट्स को आपने केयर करना है। ठीक है, बाकी सम आप ग्राफ पे खुद ड्रॉ करेंगे, अपने आप ये सम्स करेंगे। पहली एक्सरसाइज करने के बाद वही लीनियर कांस्टेंट्स ये सब ग्राफ पेपर बना लेना। स्टूडेंट्स को इसमें रीडिंग करने में ये एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि भाई मुझे क्या मैक्सिमम करना है और कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, a factory makes tennis racket and cricket bat। आप इसमें स्टेटमेंट्स थोड़ी सी और दूसरे तरीके से भी नोट कर सकते हैं। मतलब यहां पे आप आइटम्स लिख सकते हैं, रैकेट एंड बैट। आप लिख सकते हैं कि लास्ट लाइन से पता लगेगा what number of rackets and bats should be made if the factory is to work at full capacity। तो अब नंबर ऑफ रैकेट्स, लेट नंबर ऑफ रैकेट्स बी मेड is x, number of bats be made is equal to y।
A racket takes 1.5 hour machine time. यहां पे लिख दो machine time. तो 1.5 आवर्स इसको चाहिए. और क्राफ्टमैन टाइम्स craftsman time 3 आवर्स रैकेट को काम करने के लिए. सॉरी, हाँ 3 आवर क्राफ्टमैन टाइम्स है. बैट के लिए 3 आवर मशीन टाइम्स है एंड 1 आवर क्राफ्टमैन टाइम्स. टोटल टाइम अवेलेबल मशीन टाइम्स मेरे पास 42 आवर्स है और क्राफ्टमैन टाइम्स 24 आवर्स. तो z इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन x प्लस y बन जाएगा टू बी मैक्सिमाइज्ड. हाफ मार्क्स ईच लानी है, लीनियर कांस्टेंट के होते हैं. 1.5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इज लेस देन इक्वल टू 42. ये पहली लीनियर कांस्टेंट बनेगी. 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 24. ये सेकंड बनेगी. x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3. ये आपके लीनियर कांस्टेंट्स बनेंगे. इसी का सेकंड पार्ट भी है. इफ द प्रॉफिट ऑन द रैकेट एंड द बैट इज ₹20 एंड दिस फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी. मींस वही नंबर ऑफ रैकेट्स के ऊपर डिपेंड करेगा. ये फर्स्ट पार्ट के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है एंड फॉर सेकंड पार्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन रैकेट इज ₹20. 20x हो जाएगा प्लस 10y टू बी मैक्सिमाइज्ड. ये सेकंड पार्ट का ऑब्जेक्टिव फंक्शन. रेस्ट ऑफ द पार्ट विल रिमेन द सेम. तो ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया. सेकंड क्वेश्चन लीनियर कांस्टेंट्स आपको बनवा दिए. ग्राफिकली आप इसको खुद सॉल्व करेंगे. नाउ लेट मी टेक योर क्वेश्चन नंबर 3. A manufacturer produce nuts and bolts. लास्ट लाइन पढ़ लीजिए. हाउ मैनी पैकेजेस ऑफ ईच बी प्रोड्यूस्ड. तो नंबर ऑफ पैकेजेस फॉर नट्स को आप x ले लो एंड नंबर ऑफ पैकेजेस प्रोड्यूस्ड y ले लो बोल्ट्स के. ठीक है. लेट मैन्युफैक्चरर produce X packages of nuts and Y packages of bolts. तो यहीं पे आप इस टाइप से टेबल्स बना लेंगे. ठीक है. पहले में आप मशीन लिख लेंगे. ए एंड बी क्योंकि 2 मशीन्स हैं. फिर आप टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नट्स, टाइम रिक्वायर्ड to produce nuts. ठीक है. टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस. ठीक है, यहां पे ऐसे बना देते.
यहाँ पे बीच में दो चीजें बना लेते हैं, ये नट्स की और ये बोल्ट्स की, ठीक है। It takes 1 hour work on machine A and 3 hour works on machine B to produce nuts. 1 hour on machine A and 3 hour on machine B to produce nuts. 3 hour on machine A and 1 hour on machine B to produce bolts. Maximum machine hour 12 hours and 12 hours, दोनों मशीनें 12 आवर्स के लिए अवेलेबल है। प्रॉफिट 2.50 rupees per package on nuts and 1 rupees per packet on bolts. मैंने कहा था कि नंबर ऑफ एक्स पैकेज ऑफ नट्स जो एक्स है, इन दोनों के साथ एक्स आएगा, इन दोनों के साथ वाई। इट मीन एक्स प्लस 3y is less than equal to 12 first linear constant and 3x plus y is less than 12 second linear constant. Z is your objective function, 2.5 of x plus y ये objective function to be maximized. x comma y greater than equal to 0, ये आपके लीनियर कांस्टेंट्स बने। क्योंकि लास्ट लाइन से आपको पता लगेगा कि मुझे x और y को क्या लेना है। क्वेश्चन नंबर 5, पहले क्वेश्चन की बुक से अच्छे तरीके से रीडिंग कर लेना। A manufacturer two type of CPU A and B. Each type of CPU require the use of two machines, automatic and hand operated. Means इसमें भी आप वही पॉइंट्स लिखेंगे, automatic and hand operated. Clear? Automatic machine, hand operated machines. Clear? Screws A and B. Four minutes on automatic and 6 minutes on hand operated. पहले how many packs each type of should be produced in a day in order to maximum profit. The number of packages of screw A को x लेना, let number of packages of screw A is x and number of packages of screw B is y. स्क्रू ए के लिए 4 मिनट्स ऑटोमेटिक है एंड 6 मिनट हैंड ऑपरेटेड मशीन्स। ये 6 स्क्रू ए की वर्किंग है। और बी के लिए 6 मिनट ऑन ऑटोमेटिक एंड 3 मिनट्स ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन्स। टोटल टाइम अवेलेबल ऑटोमेटिक मशीन का टोटल टाइम मुझे मेंशंस कर रखा है। ईच मशीन इज अवेलेबल 4 आवर। 4 आवर का मतलब 240 मिनट्स। एंड प्रॉफिट
स्क्रू ए पे मेरे पास ₹7 का है और इस पे ₹10 का है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बन जाएगा 7x + 10y टू बी मैक्सिमाइज्ड। स्क्रू ए में x है, मींस 4x + 6y should be less than 240. 6x + 3y should be less than equal to 40 and x, y should be greater than equal to 0. ये लीनियर कांस्टेंट बनेंगे, इससे आप सम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, a cottage industry manufactures pedestal lamps and wooden shade। लिख लेते हैं pedestal lamps, wooden shade, each requiring use of grinding and cutting and a sprayer। मीन्स ग्राइंडिंग एंड कटिंग को मैं मशीन को यहां लिख लेता हूं और स्प्रेयर भी चाहिए, वो यहां पे लिख लेते हैं। टू मैन्युफैक्चर ए पेडेस्ट्रियल लैंप्स 3 hours, 2 hours ग्राइंडिंग मशीन के ऊपर चाहिए और 3 आवर इसके ऊपर चाहिए। इट टेक्स 1 hour on grinding machines and 2 hours on sprayer machines। क्लियर? टोटल अवेलेबल्स, टोटल टाइम जो अवेलेबल है मेरे पास मशीन का 20 hours for grinding and these machines, at most means ज्यादा से ज्यादा, means हम less than equal to 20 लेंगे and this is 12 hours। The profit, पेडेस्टल के लिए टोटल प्रॉफिट कितना है? ₹5 एंड शेड के लिए ₹3। लेट द मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस pedestal lamp, number of pedestal lamp is X and number of wooden shade is Y। तो Z is equal to 5x + 3y। तो वो पेडेस्टल को x ले लिया, ये दोनों x है, ये y है, तो 2x + y is less than equal to 20, 3x + 2y is less than equal to 12, x greater than 0 and y greater than। ग्राफ अपने आप बनाएंगे, सिर्फ ये रीडिंग्स की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं हम उसको कवर अप कर रहे हैं। अगर आप इस टाइप से स्टेटमेंट्स लिखना शुरू कर दें तो आपकी प्रॉब्लम्स एलिमिनेट हो जाएंगी, कभी गलतियां नहीं होंगी। A company manufacture 2 type of novelty sovereigns made of plywood। मीन्स मैन्युफैक्चर 2 टाइप की है।
let souvenirs of type A is X, ये कोई प्राइजेस शील्ड्स होती हैं जिसको आप सुवेनिराइज कहते हैं। ये एक्स और वाई मैंने लेट कर ली है। मैं इस टाइप से टेबल्स बना लेता हूं। टाइप पहले यहां पे ए लिख लेता हूं, यहां पे बी, ऊपर आइटम्स लिख देता हूं। क्लियर? टाइप ए को 5 मिनट कटिंग चाहिए और असेंबलिंग। यहां पे हम कटिंग लिख लेते हैं, असेंबलिंग मीन्स कुछ अलग अलग पीसीज में होंगे तो उनको असेंबल करना है। टाइप ए में जो कटिंग टाइम्स है वो 5 मिनट्स है, ये टाइप ए है, और असेंबलिंग जो है वो 10 मिनट्स की है। टाइप मशीन बी में 3 hours 20 minutes, if there are 3 hour 20 minutes available for cutting and 4 hour assembling, type B require 8 minutes for each cutting and 8 minutes for assembling। इसको 8 मिनट कटिंग के चाहिए और 8 मिनट इसको असेंबलिंग के चाहिए। कटिंग के लिए मेरे पास जो टोटल टाइम अवेलेबल है, कटिंग में टोटल टाइम अवेलेबल है 3 hours 20 minutes। 3 hours का मतलब हो गया 200 मिनट्स, और दूसरे में मेरे पास है 4 hour मीन्स 240 मिनट्स। प्रॉफिट यहां लिख लेते हैं। ईच टाइप्स का जो प्रॉफिट है वो 5 रुपीज है, और यहाँ पे जो है वो 6 रुपीज है। आप समझ गए? कटिंग के नीचे कटिंग का टाइम है, असेंबलिंग के नीचे असेंबलिंग का। ये मशीन ए की रिक्वायरमेंट है, ये टाइप बी की रिक्वायरमेंट्स है। ये एक्स है और ये वाई है, मींस ये एक्स और ये वाई, मींस 5x प्लस 8y शुड बी लेस देन 200। 10x plus 8y should be less than equal to 240. X comma y greater than equal to 0. Z is equal to 5x plus 6y. ठीक है। नॉर्मली स्टूडेंट्स को इसी में प्रॉब्लम्स आती है कि हाउ टू गो फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट एंड ये सब। तो ये जो क्वेश्चंस आपके बाउंडेड के थे वो मैंने आपको करा दिए। क्वेश्चन नंबर 8, a merchant plans to sell 2 type of personal computers, a desktop model and a portable model, will cost rupees this and this respectively। मीन्स हम ये लिख लेते हैं, 2 टाइप के मॉडल्स हैं। वन इज योर दूसरा हमारे पास है पोर्टेबल। जो दोनों का कॉस्ट है वो हमें दिया हुआ है। His estimate that total monthly demand of the computer will not exceed 250। तो आप यहां लिख सकते हैं लेट merchant sold number of desktop model is X and portable model BY।
क्लियर? तो डेस्कटॉप मॉडल की जो यहाँ कॉस्ट है, या मैं कॉस्ट लिख लेता हूं, ये 2500 है और इसकी जो कॉस्ट है 25,000 है, इसकी जो कॉस्ट है वो 40,000। ये तो मैंने कॉस्ट लिख ली दोनों में, और दोनों में जो प्रॉफिट है वो मेंशंस कर रखा है। इस पे 4500 है और इस पे 7000, 5000 नॉट 7। क्लियर? जो टोटल उस पे अमाउंट्स है, मीन्स टोटल पैसा उसके पास 70 lakhs है। ठीक है, टोटल मनी। दिस implied 25,000 x plus 40,000 y should be less than equal to 70 lakhs। एक लीनियर कांस्टेंट ये बने, जिसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 5x plus 8y is less than equal to 40, 100। दूसरा, उसकी जो सेल्स है वो 250 से कभी ज्यादा नहीं जाएगी। x plus y is less than 250। तीसरा, x is always comma y is greater than 0। z जो प्रॉफिट फंक्शन आएगा 4500 into x plus 5000 into y to be maximized। ये इसका मैंने टेबल्स बना के सम करा। क्वेश्चन नंबर 9 डाइट प्रॉब्लम्स हैं। अनबाउंडेड आएगा ग्राफ, करने की अभी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 अनबाउंडेड है ग्राफ। आप लीनियर कांस्टेंट बनाना चाहें तो बना लीजिए, बट ग्राफ अनबाउंडेड है, कोई जरूरत नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 11, the corner point of the feasible region of the following systems given में है आपके पास। Condition on P and Q so that the maximum value of Z occur at 3, 4 and 0, 5। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपके एग्जाम में कई बार आया। देखिए, जेड जो आपको फंक्शन दिया हुआ है, जेड इज योर पी एक्स प्लस क्यू वाई। कॉर्नर पॉइंट्स मुझे वर्टेक्स जो दिए हुए हैं ओ 0, 0, ए को मैं 5, 0 ले लेता हूं, बी को 3, 4 एंड सी को 0, 5। 4 पॉइंट्स दिए हुए। मीन जेड की वैल्यू यहां से 0, यहां से जेड की वैल्यू 5p, यहां से जेड की वैल्यू 3p प्लस 4q, और यहां से जेड की वैल्यू 4, 5q। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड आपको एक तो 3, 4 पे दे रखी है और एक 0, 5। These two are the maximum value of Z। This implies 3p plus 4q is equal to 5q आ जाएगा।
This implies 3p is equal to Q. This should be the answer. It means D is the correct options. So this is your exercise 12.2 and एग्जाम्पल्स आप खुद ट्राई करेंगे, बट आप एग्जाम्पल नंबर 6 नहीं करेंगे बिकॉज डाइट प्रॉब्लम से। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8 आप खुद करेंगे। इसमें ऐसे ही आपके पास एक्सरसाइज नंबर 12 में भी बहुत सारे सम्स दिए हैं, 2 वीडियोस उसके ऊपर भी आएंगे, बट अभी आप सिर्फ मैं बाउंडेड के करा रहा हूँ। वैसे हम बाउंडेड पहले भी कभी एग्जाम में सम नहीं आए, बाउंडेड ही आते हैं, बट मैंने जो ग्राफ बनाना सिखाया वो आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया कि हाउ टू टेक द ग्राफ्स, मीन्स कैसे आपने पॉइंट चेक करने। सेकंड वीडियो में मैंने सिर्फ आपको लीनियर कांस्टेंट बनाने सिखाए। थर्ड वीडियोस में जो हम आपको कराएंगे वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स मेनली डिस्कस करेंगे। रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आई हैव कवर्ड इन दिस